General Surgery, working with Sir Abdurrahman Alvi since 2002. It is an honor for me to present a brief presentation about Sir Abdurrahman Alvi, Consultant Surgeon DHQ PMC of Teaching Hospital Gujranwala. Sir Alvi has developed a teaching unit, Ward number 8, having teaching the board rounds, group discussions, journal club, morbidity and mortality conferences. He has created friendly working conditions and environment in the ward. He has performed all types of elective surgeries and emergency work. Unprecedented laparoscopic surgeries like hernia repairs, DU perforation repair, adrenalectomy, splenectomies, hystectomies, sleeve gastrectomy at DHP Hospital Gujranwala. He has performed a lot of esophagectomies and pancreaticoduodenectomy procedures. Now, by the grace of Allah, his SRs are performing Whipple procedure independently. खाका तस्वीर था मैं खाली अजरंगे हयात, यूं सजाया आपने मुझको से कैसर कर दिया. House job at DHQ Hospital was recognized by his efforts in 2001. PG training for FCPS was recognized by his efforts in 2010. And now at the time of his retirement, his trained PGs are more than 46 and qualified postgraduate FCPS surgeons are more than 18. He has done his MBBS from Quaid-e-Azam Medical College, Bahawalpur in 1987. He was second best graduate, first position in Gynae and Obs, second in medicine, obtained second position in the university in order of merit. He has done FCPS General Surgery from College of Physicians and Surgeons, Pakistan in 1992. Part 1 and Part 2 are in first attempt. Youngest FCPS in General Surgery from CPSB. Best synopsis and dissertation published in Journal of CPSB in 1992. He has done his FRCS from Royal College of Surgeons, Ireland in 1999. Due to his achievements and academic records, he was awarded honorary fellowship by American College of Surgeons in November 2017. Selected as member of SAGES, Society of American Gastroenterologists and Endoscopic Surgeons in 2018. He is referee and reviewer of the Surgeon General of Royal College of Surgeons, Edinburgh and Ireland since 2003. Referee and reviewer for the Elsewhere International Editorial System since 2009. He remained Finance Secretary, Society of Surgeons of Pakistan, Lahore for 1993 and 94. He remained Member Executive Committee, Society of Surgeons of Pakistan, Lahore from 2001 to 2005. Sir Abdurrahman Alvi first time started CME activity in DHQ Hospital and acted as Chairman CME from 2003 to 2011. He started Gujranwala chapter of Society of Surgeons and acted as first secretary for 4 years and later as president for 4 years. Arranged 3 national level conferences in Gujranwala and 1 international, participated by SARC Society of Surgeons as well.
He is chairman, Institutional Review Board, Gujranwala Medical College and DHQ Teaching Hospital. He is also member Academic Council, Gujranwala Medical College, Gujranwala. He was president, Gujranwala Medical College Alumni Association. He has arranged so many workshops and courses. He regularly attended international workshops and conferences to keep updated with the latest and improved skills that help to improve PG training. The courses are laparoscopy course, intermediate skills, Ninewell Hospital, University of Dundee, 2006. Masterclass laparoscopy colorectal surgery, Karachi in 2007. Advanced laparoscopy course, Vaduz University Hospital, Vietnam, 2009. He also attended laparoscopic bariatric surgery course 6 to 7 February 2017, Ninewells Hospital, University of Dundee, UK. Laparoscopic bariatric surgery course, Medatronic, Istanbul, Turkey, 2017. Bariatric surgery course, Sharjah, 2017. 46 PGs trained so far at DHQ Hospital. First department at district level to get accredited for full fellowship training, and DHQ Ward number 8 was recognized before establishment of GMC College. Conducted multiple workshops at DHQ, including laparoscopic workshops both for general as well as gynecological surgeons. He conducted workshop on diagnostic laparoscopy and laparoscopic hysterectomy. Workshop on staple diamondectomy. संग बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शमा इल्मो आगही से दिल मुनव्वर कर दिया. He has written a lot of papers and publications like cholecystectomy in acute cholecystitis. His synopsis was published in Journal of CPSP in 1992. Pattern of medical bowel obstruction, which was published in 1994. Non-nitrogenic extrahepatic biliary injuries in 2004. Complications after mastectomy through axillary dissection in females presenting with carcinoma of breast in 2019. Frequency of abdominal tuberculosis in patients presenting with acute abdomen. American-based Research Journal in 2019. Polycystoduodenal fistula causing gallstones ileus, presented in April 2020. Bowel anosmosis, adverse outcome and health expenditure in 2 age groups. It was published in 2019. Outcome of laparoscopy repair of duodenal ulcer perforation compared with open technique in DHQ Teaching Hospital, Gujranwala, published in PGS. Subday hernioplasty versus hernioplasty in incisal hernia, a comparative study. Laparoscopic tumescent tap, patient outcome and feasibility of this maneuver for surgeons. He presented a lot of technical papers at Society of Surgeons, Gujranwala, Lahore and Rawalpindi, like pattern and management of peripheral vascular trauma, perineal hernia, common bile duct injuries, third degree perineal tear, sclerosing cholangitis and interesting case, biliary cyst adenoma, urethral hypoplasia, non-arterogenic extrahepatic biliary injuries.
laparoscopic repair of DU perforation and necrotizing fasciitis. He has presented 2 papers in San Antonio, Texas, USA in June 2014. One was exposure assessment of children and young working at clay bricks factories in Pakistan. Second one was investigation of deaths possibly associated with acute silicosis caused by high exposure to free silica in quartz grinding and mixing factories around Lahore, Pakistan. He also presented papers like neuroendocrine tumors of pancreas in the International Surgical Conference Lahore in 2015. Presented paper on laparoscopic suture rectopexy, which was performed for rectal prolapse in International Surgical Conference Lahore 2015. We also presented paper on processive stricture of esophagus treatment options at International Surgical Conference in March 2018. He has performed lot of esophagectomies at Gujranwala, which were due to esophageal sphincters, esophageal strictures after taking Grocev intake. He has done a daring ICU supervision during early days of COVID, during which he was infected twice, but he continued his work. He has printed a working booklet for COVID management. He has enjoyed every aspect of his life. He used to walk 7 to 10 kilometers per day. He loved playing cricket. Our unit had enjoyed a lot of cricket matches. He is practicing and learning true religion Islam, which is not biased. He is an extraordinary doctor as well as a teacher. Most of the doctors, professional staff and employees have benefited from his services and contribution to the medical field. The moments we shared and the memories we made will always be remembered and cherished. I especially will always owe you a debt of gratitude for knowledge, experience and professional guidance you have provided to us at this hospital. Sir Abdul Rahman Alvi has delivered a lot for people of Gujranwala. Allah has blessed him with a prosperous and healthy life, graceful and friendly wife, intelligent and loving 4 sons. He is my mentor. आसान लफ्ज़ों में मेरे मुर्शद हैं. Praying for his happiness. चश्मे फैज़ और दस्तों बारिश सिर्फ जब छू गए, मुझको मट्टी से उठाया और फलक पर कर दिया. थैंक यू. मैं आज अपने डिपार्टमेंट में बात करी थी. मैंने कहा तो वो मुझे बता रहे थे आपके बारे में कि सर इज़ वेरी वेल रिनाउंड, माशाल्लाह बड़ा काम किए थे. मुझे तो जी अभी तक रिसेंटली थोड़ा अर्सा ही हुआ है. सो बट मीटिंग्स में भी आई फाउंड योर कमेंट्स और आपकी जो बातें थी वो बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी आपकी. एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. मैं तो इतना ही आपको जानती. आई विशिंग यू ऑल द बेस्ट टीम फॉर योर फ्यूचर. Sir, I am Dr. Saima, working as professor of Gujranwala Medical College. सर मेरा इंटरेक्शन भी आपका टेलीकॉन्फ्रेंस मीटिंग में किया है, लेकिन आपकी जो हमने बातें सुनी हैं तो आपके अचीवमेंट्स और आपका बहुत अच्छा लगा. सर विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर. I'm Professor Samina Asghar, Professor of Gynae.
Nancy Gujrawala. I have a few things to say. I can't believe you are retiring. पहले तो it was a shocking news for me कि I thought कि मैं ही retire करूँगी सबसे पहले, लेकिन it was shocking for me. Congratulations on the hard work you put in and your dedications to this institution. Thank you for everything you have accomplished for this institution. We hope you enjoy your future with lots of time to enjoy with your hobbies, friends and family as much as we have enjoyed with you. It won't be the same here without you. In the years you have been with the institution, your hard work, dedication and achievement may never be matched. Thank you for everything you have contributed to this institution. Cheers to your retirement. अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर शाहदुल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जनरल मेडिकल कॉलेज। मैं सर के बारे में बड़ा मुख्तसर सा कहूँगा कि सर ने माशाल्लाह जिस तरह से जब से मैंने EMC ज्वाइन किया और इससे पहले भी सर की, मैं चूँकि गुजरांवाला का नेटिव हूँ तो मुझे सर की शहरत और सारी स्किल्स के हवाले से तो बहुत सारा पता था, सर के पेशेंट के हवाले से मिलता था रेफरेंस। लेकिन जब EMC में आके सर से मुलाकात हुई तो माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा पाया, और सर की पर्सनैलिटी और सर की जो अपना डेडिकेटेड कमिटमेंट थी अपने काम के हवाले से, ये हम इसका शुक्रिया अदा नहीं करते थे सर का। और मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैंने सर से भी रिक्वेस्ट की थी कि सर को हम इंगेज रखें अपने नए प्रोजेक्ट में, और इनकी इनोवेशन और इनकी जो है हमारे लिए बड़ी एक मिशन रहा है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ इतना अच्छा ज़बरदस्त टाइम गुजरा है और इंशाल्लाह हम आपको गायब हुए टाइम भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। My name is Mohammad Maqas and I am professor of surgery, and I recently joined, and fortunately and luckily I am the successor to Alisa in the same ward and the same unit. और अभी मेरी शुरू के चंद ही दिन गुजरे हैं आफ्टर समर वेकेशन से मैंने ज्वाइन किया है, और एक बड़ा इम्पैक्ट है उस पूरे डिपार्टमेंट में। और आज सुबह के राउंड में जब मैं राउंड करते हुए देखा तो देयर वाज अ पेशेंट हु हैड अ Whipple's pancreatectomy, which is one of the major operations in general surgical practice, and I was very much amazed to learn कि Umar जो SR है, he was the main surgeon who did that surgery. So I thought, मैंने उससे पूछा कि यार ये वो ऑपरेशन है जो कि मतलब है कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स के घर में कराते हैं, तो उससे आगे से जवाब दिया सर अभी साहब ने बड़ा अच्छा ट्रेन किया। सो आई फेल्ट कि वाकई प्रॉबेबली आपकी जो रिटायरमेंट है ये एक सॉर्ट ऑफ अ लॉस टू द फैकल्टी एंड द इंस्टीट्यूशन होगा। बाकी मेरी सर आपसे आज पहली मुलाकात है, और जिस तरह मैंने आपके बारे में सोचा था कि आप एक बारिश किस्म के इंसान होंगे बड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। कुछ गुजरांवाला से पेशेंट जो रावलपिंडी आते थे उनके ज़रिए गायबाना तारुफ आपसे था, तो लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। और जैसे मैंने सुना बड़ा साहब ने कहा कि जो कुछ आपने किया है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड डिसोफेजेक्टिव सर्जरी, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जनरल सर्जिकल प्रैक्टिस की दराज है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी एज फार एज रिटायरमेंट इज कंसर्न्ड, आई थिंक सर फॉर अ सर्जन एंड क्लिनिशियन रिटायरमेंट इज अ रिलेटिव टर्म। आप एक जगह से दूसरी जगह दूसरी तीसरी, क्लिनिशियंस आई थिंक दे नेवर रिटायर, इट इज़ जस्ट अ चेंज इन योर पोजिशन। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम जो कुछ आप करके गए हैं उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें। बाकी एनी टाइम यू आर वेलकम सर, आपका यूनिट है, जब भी आप चाहेंगे यू विल बी वेलकम। जी आई एम डॉक्टर मियाँ वहीद। सर से मैं रेडियोलॉजी में फिलहाल एक्टिंग एचओडी हूँ, और सर से मेरा इंटरेक्शन कुछ 6 साल से है। तो सर से मैंने बहुत लर्न किया है, स्पेशली जब शुरू में आए तो हमें डिपार्टमेंट हमारा न्यूली बिल्ड था, तो सर हमें गाइड भी करते थे, डिस्कस केस करते थे किस तरह हम अपनी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ नहीं। हमने सारी इतनी चीज़ें इंट्रोड्यूस यहाँ आगे करवाई, तो सर ने हमें बहुत हेल्प किया। ये ऑफ द बॉडी केस टू केस हम सर हमें गाइड करते थे कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है बिफोर सर्जरी, तो हम वो फिर अपने आप को उस तरह इम्प्रूव करते थे। तो सर ने हमें हर तरीके से गाइड किया। और इसके अलावा सर से की जो डायनेमिक पर्सनैलिटी है, मोस्टली मीटिंग्स में सर से हम तो देखते रहते हैं सर क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं सर को और उनसे लर्न करते हैं।
और जो एक चीज़ और है, प्राइवेटली सर के पेशेंट्स काफ़ी मैं देखता भी हूँ, सर के भी इसके अलावा भी, यानी गुजरांवाला की जो लोकेलिटी के लोग हैं, तो लोग वही अच्छा सर्जन है या अच्छा डॉक्टर है जिसके लोग पेशेंट आके अपने आप तारीफ करते हैं। तो वो जादू जो सर चढ़ कर बोलता है, तो सर का मैं मुंह पे कब सबके सामने ये मैं करता हूँ कि लोग बड़ी अच्छी तारीफ करते हैं। तो यही है आपका फीडबैक कि माशाल्लाह आपकी किसी से मैंने बुराई नहीं आई, वरना लोग बहुत से डॉक्टरों की बुराइयां भी करते हैं आगे, लेकिन मैंने सर की तारीफ ही सुनी है हर जगह से। तो सर ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है। मेरा नाम डॉक्टर जमशेद है और मैंने रिसेंटली एज प्रोफेसर ऑफ लैंग्वेज ज्वाइन किया और सबसे मेरे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है वेरी नाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फजल रहमान है और मैंने भी सर के साथ, यही सादत है कि सर के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। सर की मिसाल वैसे ही है जैसे एक बाप अपने बच्चों को सोने का माला खिलाता है लेकिन शेर की आंख से देखता है। सर ने माशाल्लाह अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन किया है, जैसे सर ने बताया, डॉक्टर उमर की बात बताई है। सर जो है सर्जरी में तो माशाल्लाह जैसे डॉक्टर अमीन साहब ने एक लंबी लिस्ट है सर की, लेकिन सर हमारे कोविड के भी हीरो हैं। सर प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, सर प्रिंसिपल साहब का इंतखाब था। सर को कोविड के दिनों में जब रिश्तेदार अपने घर वालों के पास नहीं जाते थे तो सर को हर मरीज का पता था। उसके अलावा मैंने देखा है कि सर एक रोल मॉडल हैं। सर जिस तरह से सर ने अपने यूनिट को बनाया है, जिस तरह से सबसे पहले पीएमडीसी से इनका यूनिट रिकग्नाइज हुआ, तब मेडिकल कॉलेज भी नहीं बना था, मुझे याद है 2008 में। माशाल्लाह सारे एकेडमिक्स और हर नई से नई और बेस्ट से बेस्ट चीज़ अपने टीम को सर ने जिस तरह से कराई। और खुद मैंने देखा है कि थिएटर में जब भी कोई बंदा फंस जाता है तो सर बिल्कुल अपनी करके वहाँ पे पहुँचे। और इनके जो जूनियर है वो भी, जब बहुत सारे थिएटर में लोग, खासकर हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जब किसी परेशानी में होती हैं तो सर की टीम के बंदे मैं देखता हूँ वहाँ पे होते हैं। किसी भी काम में जो एकेडमिक्स के अलावा हम किसी जगह पे भी फंसे हैं, कोई इंक्वायरी है तो सर को हमने डाल दिया है। भले इधर इस तरफ से कोई केटू का पहाड़ आ जाए, कोई बड़े से बड़ा पहलवान आ जाए, सर ने कभी किसी की परवाह नहीं की। इसके बावजूद ये तो एकेडमिक की बात थी। दूसरी बात थी बहुत सारे मसाइल में सर ऐसे हुए कि हमें कोई बाहर से भी बहुत प्रेशर आ गया जुडिशरी का या कोई इस तरह, तो सर हमारे साथ ऐसे ही खड़े हैं जैसे हमारे भाई। तो सर ने बहुत ज़बरदस्त तरह से काम किया है। इसका अजर तो अल्लाह ने इन्हें देना है, लेकिन बहुत सारी इनके लिए दुआएं, इज्जत, एहतराम सर आपके लिए। प्रोफेसर सुबैर कम्युनिटी मेडिसिन कॉलेज से मेरा सर का इंटरेक्शन कॉलेज में ज़्यादा रहा है, कुछ इनके ऑफिस में भी गया रिसर्च के साथ सीखने में, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। सर के लिए मैं लफ्ज़ ऐड करूँगा, ही इज़ नॉट जस्ट जनरल सर्जन, ही इज़ जनरल सर्जन प्लस। सर के पास जो ज़बरदस्त टूल्स हैं जिसको मैंने आज तक बहुत कम लोगों में देखा है अलॉन्ग विद क्लिनिकल साइड। सर की स्टैट बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ब्रिस्क और बड़ी क्रिस्प है और इस वजह से इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनका वो जो दूर का देख रहे थे क्या चेंजेस आ रही है, क्या ट्रेंड है, इसी वजह से गुजरांवाला की चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि मैनेज भी अच्छा किया और आई थिंक जो अपने ट्रेनिंग हैं उनको भी ये सब कुछ आगे ट्रिपल डाउन किया होगा। और आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। सर आपके लिए बस एक और सजेशन होगी, अब बुक लिखें, आपकी बुक लिखना सबसे ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट में भी माशाल्लाह मकबूल होगी और उनका बेनिफिट होगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना वाइड है। तो आप स्पेसिफिक लेप्रोस्कोपी के लिहाज से भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लिखें ज़रूर क्योंकि यू आर गुड इन दीज थिंग्स। डॉक्टर जाहिद एचओडी पैथोलॉजी। जब मैं लाहौर से आया 1 साल पहले, मेरे दोस्त से डॉक्टर साहिद कहने लगे यार तू उसे चलना है, उसे बड़ा स्टाफ का सर्जन कृष्ण नगर का होता रहना। कौन कहते डॉक्टर अब्दुल रहमान भी हैं। तो फिर ट्यूमर बोर्ड की मीटिंग में मेरी इंटरेक्शन हुए
तो मैंने असेस कर दिया। मैं वहाँ पे लकी साहब तो उनसे बड़ा इंप्रेस था, डॉक्टर निशान थे, डॉक्टर बारिशर के बाद, तो बीइंग ए हिस्टोरिकल कॉलेजिस्ट एक उन्होंने जिक्र करके भेजा, कहते जी आपने 2 निपुण भेजे हैं उसमें बोर्ड में, तो मैंने तो देखे हैं उसमें 8 होने चाहिए, तो मेरी SR ने किया है लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन उसमें 8 निपुण मैं प्रैक्टिकल से इतना कॉन्फिडेंस 8 निपुण है वो मैंने अपने स्टूडेंट है उसको कहा कि आपने 2 निकाले, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं कि 8 है, तो आप स्पेसिमेन मुझे दिखाएँ तो मैं तो तो मैंने जब क्रॉसिंग शुरू की तो 1 2 3 4 5 और सब सेंटीमीटर, सारे सब सेंटीमीटर थे, तो 8वां मुझे नहीं मिला, तो मैंने तो बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा 8 है तो 8वां नहीं। फिर एक कॉर्नर पे तकरीबन 4-5 mm का मुझे मिल गया, तो सारे रेक्टर थे। तो फिर सर से मैंने बात की, मैं बड़ा इंप्रेस में पहले भी बड़ा इंप्रेस था, ये सुनी थी, अब मैं और इंप्रेस हो गया, इतना कॉन्फिडेंस जितने निकाले हैं उतने ही बीच में से निकाला सर। बेस्ट ऑफ लक। मैं प्रोफेसर शहजाद हूँ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी का हेड हूँ और साथ वाइस प्रिंसिपल हूँ। सर के साथ आगाज़ तो इसी बात से कि मेरे ख्याल कुछ महीने मुझे हुए सर के साथ, लेकिन लगता है इस तरह कई सालों और सदियाँ टाइप हमारा रिलेशन है। सर बिल्कुल बड़े भाई की तरह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि न्यूरोसर्जरी वाला बंदा कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब्दुर्रहमान अलवी बनूँ, तो माशाल्लाह सर ने इतना कुछ इस मामले में देखते हैं, सर ने हर मामले में इन्वेस्ट किया और हर मामले में एक अपने आप को मॉडल के तौर पे शो किया कि हम उनको फॉलो कर सकते हैं। मेरे पे काफ़ी डिफिकल्ट टाइम्स आए, जो टास्क नहीं हमेशा सर ने हेल्प की, और इवन जो न्यू हॉस्पिटल बन रहा है उसके अंदर भी इवन उसका जो साइन बोर्ड से लेंगे तो वहाँ से भी अजीज साहब से होती है, हर चीज़ अजीज साहब के मशवरे से हुई है। इस हॉस्पिटल में इन हालात में जिस तरह का DHQ का था और 20 साल 25 साल से यहाँ सर्व करना, और वरना लोग कहते हैं कि मैं सेंटर में हूँ, हर बंदा कहता है लाहौर जाकर बैठूँगा, लाहौर से बाहर निकलूँ, तो सर ने गुजरांवाला में वो डिपार्टमेंट बनाया जिसपे शायद लाहौर वालों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। इतना अच्छा डिपार्टमेंट लाहौर में भी शायद कोई नहीं सर जी, तो बहुत सारी की अचीवमेंट है, इतनी सारी है कि बस मैं मेरे ख्याल बयान नहीं कर सकता, टाइम भी बहुत कम है इतिहास। सर बहुत मतलब दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई, लेकिन ये है कि हमें आपकी बहुत जरूरत रहेगी। मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, कोई जिस तरह होता है ना सर प्रोफेसर एमरिट्स, सर इज़ मोर देन अ प्रोफेसर, इसमें कोई शक ही नहीं है। इस तरह सर की हिम्मत है सब कुछ, हमें कुछ ना कुछ सर के लिए इस तरह होना चाहिए बोर्ड में के सर के लिए, तो सर हमेशा से रहते हैं इतने अरसे से DHQ के साथ रहना, वहाँ सर्व करना और इतना कुछ लेके जाना, तो ये किसी भी सर को डेफिनेटली इस चीज़ को हमें सबको मिलकर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम डॉक्टर इमरान खोखर है। मैं रिसेंटली तकरीबन 1 साल हो गए मुझे एसोसिएट प्रोफेसर से। मैं जब गुजरांवाला में आया, मैं रहने वाला गुजरांवाला क्यों, लेकिन पहले कभी मौका नहीं मिला था काम करने का, तो मेरे लिए बिल्कुल एक नई जगह थी, बिल्कुल DHQ बिल्कुल नहीं है। अलवी साहब से मेरा तारुफ तो बहुत पुराना है, मैं स्टूडेंट था जब PE में गए तो सर उस वक्त के हॉस्पिटल में थे, सर उसी वक्त सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सर का एक आइकॉन ऑफ सर्जरी गुजरांवाला में हमेशा से है। हम लोग जब सर्जरी की बात होती है गुजरांवाला में तो वो कहते जी अलवी साहब, बाकी सर सीनियर का तो जो है कि नंबर 1 अलवी साहब, तो इनको हम लोग जानते रहे, इसी तरह फॉलो करते रहे। पेशेंट का प्रॉब्लम है अलवी साहब के पास चले गए, गुजरांवाला का प्रॉब्लम है अलवी साहब के पास चले गए। पिछले 5-6 साल जब मैं वापस आया सऊदीया से 3-4 साल के बाद, जब जनरल हॉस्पिटल ज्वाइन किया, फारूक अख्तर साहब और हमारी टीम थी, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी वर्कशॉप, एक ट्रेनिंग कोर्सेज, एनुअल कोर्सेज कराते हैं, वो जब करवाना शुरू किए, तो जब फैकल्टी जब सेलेक्ट करना शुरू की तो उसमें से अलवी साहब वन ऑफ दैट फैकल्टी, वो हमेशा हमारे एक मेंबर ने फैकल्टी का सर से हमेशा रिक्वेस्ट करनी कि सर आपने आना है इस दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, जब भी रिक्वेस्ट की सर तो हमेशा सोर्स ऑफ लर्निंग रहे हमारे लिए। मेरे लिए पर्सनली मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की ड्यूरिंग दीज वर्कशॉप्स एंड
सेमिनार और ये कोर्सेज थे। जब मैं लास्ट ईयर इधर आया तो मैं डामाडोल था कि मेरा अपना घर था, भाई चॉइस में नहीं स्पॉट किया, मेरे पास ऑप्शन थी लाहौर में भी 2-3 जगह भाई, तो मैंने कहा चले इतना शहर भी देखते हैं कैसा है वहाँ काम कैसा होगा। बट आई वॉज प्लस माइनस कि मैंने तो ठहरना कि नहीं ठहर। ये जब सर से मुलाकात हुई इन्होंने इतना वार्म वेलकम किया कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। तो तुम खुश होगे नहीं लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम इधर आ गए। तो ये वर्ड थे सर, तो मैंने कहा सर ये ऐसी बात है सर, इतना अच्छा वेलकम कर रहे हैं। फिर मल्टीपल टाइम उन्होंने कहा कि अब तुम्हें स्टे करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट करोगे तो दिस विल बी योर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। लाहौर चले जाओगे और चल रहा सिलसिला बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दैट वाज द पॉइंट कि मैंने फिर डिसाइड किया चलिए ठीक है मैं कंटिन्यू करूँगा। मुझे दिमाग में मौका मिला कि मैं मूव बैक करूँ। जब फारूक साहब आए प्रिंसिपल बन के सर्विसेज में, वहाँ पे सीट थी मैं चला जाऊँ, लेकिन मैंने फिर उसको जस्ट लेट इट गो। वो अब यहाँ पे रहने के बाद एक हमेशा मेरे ऊपर जैसे वो एक कंफर्ट जोन होता है कि चलिए नहीं कोई भी प्रॉब्लम कोई मसला डिपार्टमेंट की चीज़ होती है, अभी सब मौजूद है, ठीक है, उनसे डिस्कस कर लेंगे, पूछ लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन अब वो मुझे फील हो रहा है कि शायद टेम्परेरीली वो एक शेडो ऊपर से वो निकल गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि सर अवेलेबल है इंशाल्लाह हमेशा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ लर्निंग और गाइडेंस, ये इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक सर फॉर फ्यूचर, इंशाल्लाह हमारे साथ नज़दीक। मैं डॉक्टर साहब सैन प्रोफेसर ऑफ मैं सर अरबी को 1994 से जानता हूँ, जो मेरे उस्ताद भी हैं। और फाइनली हमें जो एक्सरे वो करवाते हैं सर्जरी के, वो सर ने हमें करवाया। और उस वक्त भी बिलीव नहीं, वहाँ पे यही था नो में एमरजेंसी सर्जरी बेस्ट डॉक्टर अरबी इनवारोला और एक वेद अतरीन, तीनों का बड़ा नाम था जो स्टूडेंट उस वक्त। फिर ये अलीपुर भी जाते रहे हैं, मेरा अभी तो घर है, तो मैं तकरीबन इनको काफ़ी अर्से से कंटिन्यूसली एक वो ये भी जानते होंगे GM साहब हैं अलीपुर के, काफ़ी सीनियर अब सर्जन हैं। वो पिछले दिनों आए हुए तो सर्दियाँ होती हैं, तो वो कह रहे थे इस वक्त पंजाब में जितने सर्जरी के प्रोफेसर हैं सबसे अच्छी सर्जरी सर की है। ये बिलीव नहीं उनके लिए अल्फाज है, वो भी काफ़ी सीनियर है, अच्छी सर्जरी है। I am Dr. Arjun, Head Department of Radiology. I am familiar with Dr. Abdul since 2014 when I joined Fujairah Medical. In addition to his academic profile and surgical skills, he is a thorough gentleman and a sophisticated person. In almost every job done by him, the sophistication prevails. मेरे डिपार्टमेंट में स्पेशली बहुत हेल्पफुल रहे, स्पेशली इन एस्टेब्लिशिंग दी लेप्रोस्कोपी की प्रोजेक्ट, इसको स्टार्ट करने में और इस्टेब्लिश करने में उन्होंने हेल्प की। तो हम उसके लिए बहुत ऑन बिहाफ ऑफ माई डिपार्टमेंट आई एम वेरी मच थैंक यू। आई विश के दी पैटर्नशिप जो है फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहे और हमारे लिए हेल्पफुल है सर। आई विश एम वेरी ब्राइट एंड हैप्पी लाइफ इन फ्यूचर। मैं सिर्फ 2 बातें ही कहूँगा। सर से हमने ये सीखा है कि हॉस्पिटल में सबसे पहली प्रायोरिटी पेशेंट, और दूसरी बात ये है कि हमेशा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला अली साहब को और जान दिए हमेशा खुश रहे, ये हमेशा खुश रहे। मैं आसिफ अली गलानी हूँ, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। मेरा सर से कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं रहा, क्योंकि मीटिंग्स में सर से मुलाकात हुई एक करते। तो सर ने अभी सर की प्रोफाइल का ब्रीफ दिया, दैट वाज अमेजिंग एंड आई होप दैट वाज जस्ट अ ब्रीफ। आपके अचीवमेंट्स इससे कहीं ज़्यादा एक्सट्रैक्टेड ज़्यादा है। और इंटरेस्टिंगली सर मैंने 2-3 दफ़ा आपसे सर से मुलाकात हुई मीटिंग में, और मुझे कभी नहीं लगा कि आप किस मतलब आई ऑलवेज थॉट कि आप अभी अर्ली 50s में, तो यू लुक सो यंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। Assalamualaikum ji, I am Dr. Sovia, Associate Professor in the Physiology Department. एक्चुअली हम में से कुछ नए कलीग्स हैं जिन्होंने आपको इसी तरीके से गए, तो सर मेरी आपके साथ सिर्फ 2 दफ़ा एक्सपोजर है इन द एकेडमिक काउंसिल मीटिंग, और उसमें मुझे सिर्फ इतना पता था कि आपका नाम अलवी है। एंड आई परसीव्ड यू एज अ वेरी टैलेंटेड
इंटरेस्टेड पर्सन और प्रिंसिपल साहब, क्योंकि कोई भी आप उनके पास ही बैठे होते, कोई भी बात होती है वो कहते हैं हाँ भी अभी आपका क्या ख्याल है। तो एंड आफ्टर हियरिंग ऑल दीज कमेंट्स, सर यू डिजर्व ऑल दीज कमेंट्स। ये आपकी पूरी जिंदगी की एक हार्ड वर्क है, इसके बाद ये वर्ड्स मिलते हैं। वी कैन ओनली इमेजिन कि कोई हमारे टीम में से कोई एक भी ऐसा कोई बोलना चाहते। तो मुझे ये लगता है कि हम लैक करेंगे आपके जाने के बाद कि शायद कहीं और आपसे कुछ सीख लेते, क्लिनिकल तो कुछ नहीं लेकिन शायद मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो बहरहाल सर, आई विश यू वेरी बेस्ट एंड हैप्पी एंड हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ। थैंक यू सर। I'm Dr. Usma. I recently joined Biochemistry Department. मैं भी ज़्यादा सर को नहीं जानती, मैंने नाम ही सुना, वो भी जब फेयरवेल की बात है कि सर की फेयरवेल है। बाकी जितने कमेंट्स सुने हैं उससे तो यही लग रहा है कि ही इज़ अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। मैं ये विश करूँगी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस फ्यूचर। थैंक यू सर। फैमिली की तरफ नहीं, मेरे तो बड़े भाई भी हैं और मैंने उनसे सीखा भी है, यानी मैं उनके शागिर्द भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि माशाल्लाह जितने हमारे सीनियर्स जिन्होंने DHQ में काम किया है उन्होंने नाम भी कमाया, जिन्होंने काम नहीं किया उनको बाद में कोई नाम नहीं मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस मेरा ख्याल मोर देन 20 ईयर्स आपके हो गया इधर गुजरावाला में। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा नाम कमाया और लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं और कमिटेड अपने काम में कि डेली आना है, काम करना है। और मेरा ख्याल है कि ये सबसे अच्छी बात है कि एक डॉक्टर जो ड्यूटी भी अच्छी करता है और उसने वहाँ से बहुत सा अर्न भी किया है। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सा नवाजा इस चीज़ से। मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ इस रिटायरमेंट के मौके पर कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें ये मौका दिया कि ज़िंदगी दी कि वो रिटायर हुए हैं और माशाल्लाह अपनी बाकी लाइफ जो है उसके लिए बेस्ट ऑफ विशेस हमारी कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। थैंक यू। मेरे आखिरी कुछ दिन है यहाँ पे और मुझे अभी भी आजकल मैं टिकट्स करा रहा था तो मेरा प्लान था कि मैं जल्दी जाऊँ। पापा का प्लान ये था कि नहीं एक आधा दिन और रुक जाओ यहाँ पे और ये तो इज़ ऑलवेज बिन अ वेरी सपोर्टिंग फादर हर चीज़ में, पढ़ाई से लेकर मतलब मुझे याद है कि मैं मेडिकल कॉलेज में मेरी बड़ी आदत थी एज आई ग्रेजुएट फ्रॉम ऑलरेडी मेडिकल यूनिवर्सिटी आई थिंक तो मुझे याद है कि मैं रात को मुझे होता था कि मैंने अगले दिन उठ जाना है। मुझे बड़ी टेंशन होती थी, हालांकि मतलब मेरी तैयारी और हर चीज़ ठीक होती थी बट मुझे बहुत टेंशन होती थी। तो मैं रात को 2 बजे पापा को कहता अच्छा अब क्या करूँ, फिर मुझे पूरी स्केड्यूल बना के कि अब ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो ऑल थ्रू आउट मेडिकल मतलब उससे पहले थोड़े स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट इन द सेंस के ज़्यादा पापा से इंटरेक्शन कम था, उनके बिजी होते थे और सारा कुछ। बट मेडिकल कॉलेज के बाद से क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी सेम था और हर चीज़ तो हर चीज़ अभी तक मेरा भी MRCS था तो मैं हर चीज़ प्रॉपर डिस्कस पापा के साथ करता हूँ और आई थिंक इज़ बीन अ वेरी फ्रेंडली फादर। मेरा नाम फातिमा है एंड रिसेंटली मैंने फैमिली ज्वाइन की है। आई गॉट मैरिड इन जनवरी और आप सब तो उनको प्रोफेशनली जानते हो, ऑफकोर्स प्रोफेशनली आपको पता है हाउ अमेजिंग ही इज, लेकिन मैं पर्सनली जानती हूँ कि फादर टू मी ऑफकोर्स। और आई बीन थिंकिंग कि मैं क्या कहूँ, आई हैव द होल लिस्ट तो मैं विल कीप इट शॉर्ट। ही इज़ हमारा प्रिंसिपल फॉर श्योर। उनको आई नो कि वो बहुत बिजी इंसान है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब कभी फैमिली आती है तो हमेशा उनकी प्रायोरिटी फैमिली होती है। और इसके अलावा आई हैव हार्डली सीन हिम वे, वो गुस्सा नहीं करते, इस वेरी का घर में बहुत पेशेंटली हर चीज़ को डील करते हैं। और एंड दिस दिस वन थिंग कि जब भी मुझे कोई मसला होता है आई नो कि आई कैन गो एंड ही इज ऑलवेज टोल्ड मी कि आई एम गोइंग टू फाइंड हिम स्टैंडिंग बिसाइड मी नो मैटर व्हाट हैपेंस। मैंने सबसे पहले पापा को देखा था ऐसे और पापा के और
है कि वो बहुत ही रोप वाला थोड़ा मुझे लगा उस टाइम पे लेकिन जब मैंने इनकी फैमिली ज्वाइन की तो मुझे इनकी सॉफ्ट साइड दिखी। तो सिर्फ मैं आई जस्ट वांट टू से दैट ही इज़ अ ग्रेट सर्जन, अ ग्रेट फादर, एन एक्सीलेंट हस्बैंड एंड वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर एंड लव। आप लोगों ने सारे लोग इतनी ज़्यादा तरीके कर रखे हैं कि मेरे लिए तो बचे मैं आपने प्रोफेशनल सारा कुछ बता दिया कि मैं आपको वेरी वंडरफुल हस्बैंड इससे बेहतर नहीं मिल सकते थे और बीइंग फादर एक्सीलेंट हो कोई शक नहीं, बहुत इनका जितना भी टाइम था जो बचता था आप लोगों से मेन प्रोफेशन से सारा टोटल हमारे लिए था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी और कुछ फाइंड मोर बेटर। Actually, he's the go-to person for me to Fatima. Since I joined for the past 2.5 years, clearly remember कि academic council में इसको हमने अली को engage किया और फिर he never looked back. Ali has been a great help to the institution and to me, of course. You are actually the go-to person for me. Whatever you have done in your life, सबने उसके बारे में बता दिया professionally, but I think you have been an asset for the institution and we are really proud of you. तो तुम समीना से छोटे हो और तुमने समीना के बाद रिटायर होना है पर तुमने जल्दी रिटायरमेंट पता नहीं क्यों ले लिया, क्योंकि मेरा भी अभी थोड़ी देर में रिटायरमेंट का टाइम है, तो आई एम रियली मिसिंग यू। मुझे बहुत भी हेल्प करता है, स्पेशली लास्ट ईयर एकेडमिक हमारा जो प्रोग्राम था, फिर हमारा जो कॉलेज का जो करिकुलम चेंज और की डिस्कशन और हमेशा आई हैड टू रिलाई ऑन हिम बिकॉज हिज नॉलेज वाज ऑलवेज अप टू डेट एंड ही वाज ऑलवेज वेरी फोर्थकमिंग एंड हेल्पफुल। दो हर चीज़ के रीज़न साथ ज़रूर बताता है कि ये ऐसे तो वो वैसे, पर फिर भी कोई रीज़न बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है एंड वी आर कन्विंस्ड। कोविड के ज़माने में तो मिस कर गया अमीन ने एक और किताब भी लिखी थी, वो थी एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स की यूजेज इन सर्जिकल पेशेंट्स एंड इन कोविड पेशेंट्स। तो वो तुम्हारे इसीलिए भी मिस कर दिया, लिख लेना। दैट वाज अ ग्रेट बुक इसलिए क्योंकि ऐसे इस तरह के काम जो है ना कोई नॉर्मल इंटेलिजेंस का बंदा नहीं करता, वो बहुत कोई इंटेलिजेंट बंदा होता है जो सोचता है फ्यूचर का। और दिस इज़ व्हाट यू डिड while treating COVID. I think हर कमेटी में तुम उसको हेड कर रहे होते हैं। The task we always gave you, you always giving 100%. I loved it and I think I'm going to really miss you a lot. जो हमने अपनी साइनेज का जिक्र किया था किसी ने हमारे ट्रॉमा सेंटर का, उसको जो हमने रिवैम्प करना था और फिर उसको जो हमने उसका प्लान बनाया था, तो वो हम पूरा नहीं कर सके, तुम भी नहीं कर सके, मैं भी नहीं कर सका, पर हमने एक नया हॉस्पिटल बना लिया यहाँ पर इंशाल्लाह। और इस हॉस्पिटल को इसमें इसकी अलवी की 100% इनपुट है, जो उसकी साइनेज में, उसकी ट्रियाज में। इसी तरह जो हमने प्लान किया था अभी कि हमने JCI एक्रेडिटेशन करानी है, जिसका टास्क हमने इमरान को दिया हुआ है। आई वुड लाइक कि तुम इसको सीरियसली लो, इवन आफ्टर आई लीव दिस इंस्टीट्यूशन। आई थिंक इमरान शुड फॉलो यू एंड यू शुड एडवाइज हिम, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जो कॉलेज और हॉस्पिटल है ये पंजाब में बहुत अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है, और वो
आप लोगों की वजह से है, आप लोगों के हार्ड वर्क की वजह से है। तो हमें हमेशा मौका होता है एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का, और वो सभी को एग्जैक्टली पता है कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाते हैं। एकेडमिक काउंसिल में बीइंग डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, तो मैंने इसको कहा भी था कि मैं अगर ये आज डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए प्रोफेसर होता तो आज ये प्रिंसिपल होता लाहौर में कहीं पर अगेन जो इसने चूज़ किया इसने वो किया और बहुत अच्छे तरीके से किया, और फिर डिपार्टमेंट को रिकगनाइज कराना फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एकेडमिक काउंसिल में इसकी इनपुट्स। आई थिंक अलवी the institution is going to miss you, and I am going to miss you more. So we'll be in touch, inshallah, and you're always there, and I hope you're always there to help each other out. मैडम को ज़्यादा तंग ना करना, काम शुरू करो कोई दिन के वक्त भी, क्योंकि ये नौकर गिनना और सफाई करवाने के अलावा मेरे ख्याल में it is time you start either playing golf, get out of your house and do something else. So you have a beautiful family, mashallah, and फैमिली को साथ बिठाने को और सब कुछ बनाने का मकसद भी ये होता है, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके मियाँ ने बहुत ज़िंदगी में मेहनत की है और मेहनत का फल भी मिला है, बट रिकग्निशन भी है। तो जो चीज़ें आपको नहीं पता वो हमने आज आपको बता भी दी है। तो ये आई थिंक एसेट, एंड I hope that give your services to the community, the city and the people as you have been doing previously. We really love you, Arvi. You have been very private always. बड़ा कोशिश करते हैं ना कि लोगों से ज़रा फॉर्मली ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, बट we know in our hearts of heart you are a loving person and you are sincere. This is what matters. हमारा एक बड़ी है सोहेल मुराद, जो तुम्हारे साथ जो सूचियाँ करता था मुझे अच्छी तरह पता है, तो मैं उसको बुलाना भूल गया, तो आई शुड हैव इनवाइटेड हिम, आई फॉरगॉट टू इनवाइट हिम। बट एनीवे, जो आपके ट्यूमर क्लब होते हैं डिपार्टमेंट सर्जरी के, प्लीज़ अलवी को आपने एंगेज रखा है, और what I have to say will always be there, and I think I found a good friend in you, and I would like to continue with that in the future life. Thank you, ji. सभी सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल में खड़े होकर सबके लिए दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग एंड इट मेक्स मी मोर हम्बल। आपने इतना कुछ कहा है कि वी नॉट डिजर्व इट। With the principal on my right and the vice on the left, it may be difficult for all the words to carry on, but they have all been like brothers, like friends. और यही मेरा ख्याल है लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, मेक फ्रेंड्स और मेक योरसेल्फ रोल मॉडल। दैट्स व्हाट आई थिंक। रोल मॉडल मीन्स स्टेप फॉरवर्ड। मैं हमेशा से जब शुरू में आया था इस हॉस्पिटल में, वट एवर आई डिड ओवर द ईयर्स आई डिड for this community, and that is important. I think we are part of the community, and if we are part of any community, we have to work with the community, and we have to step forward. And a single step means you are entering into the future. मेरा ख्याल है कि we all have to steer our future, at least for the young. So I think मेरा ख्याल है academic council में भी faculty or otherwise in all my responsibilities, एक चीज़ मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी, आई हैव टू बी एक्सेसिबल। I think that is very, very important for any level. You should be accessible. Everybody should be accessible to the family. That is important for everybody, and to the students and to colleagues and to everyone. If you are accessible, it means you have something to deliver. And if you
deliver something, you are recognized, and that's all we can do. I think मेरा ख्याल है कि हम सब I'm very lucky to have such a wonderful colleagues. प्रिंसिपल साहब जब से आए तो एक रिटायरमेंट जल्दी लेने का भी ये था कि बस फिर इनके प्रिंसिपल साहब पहले रिटायर हो गए तो फिर so but I thought it's the time when I should engage more with मेरे दो ओवर एंगेज ना हो जाना मेरे 4 बेटियां को मेरी क्या 2 बेटियां हैं I feel so wonderful honestly I think बेटियां they makes home very lively and love at the same time and Allah का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह I am so much लेकिन and I think for me for everyone the key is that we must deliver something for our country for our community for ourselves for our children for everyone हम जब काम कर रहे होते हैं वी आर बर्नड आउट एट टाइम्स और बात वही होता है कि वी आर वर्किंग वी जस्ट फॉरगेट अबाउट सो मेनी थिंग्स अराउंड अस बट स्टिल वी हैव टू कैरी एवरीवन इट इज सो इम्पोर्टेंट वी हैव टू कैरी अवरसेल्व्स टू द नेक्स्ट लेवल अगर ये करते रहेंगे just keep on improving yourself and this improvement is not for yourself this improvement for all of us for our community for students for parents for family for everyone so that's what I think that's how I take my life कि हम अपने लिए तो करना ही है सबने लेकिन हम दूसरों के लिए कुछ करके जाएं और जिस हद तक हो सकता है जब आप काम पे हों तो कमिटेड नसीर अवान को पता है बाकी भी जो रहे हैं कि दे हार्डली कोई किसी ने देखा कोई हॉस्पिटल में गॉसिपिंग या टीइंग या आई डोंट डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स थिएटर में आई जस्ट वॉक अराउंड एंड गो ऑन एवरी डे ऑल द टाइम्स शायद ही कभी मुझे थिएटर में किसी बैठा देखा हो या हॉस्पिटल में किसी बारह जगह बैठा हो सो आई ट्राई टू डिलीवर व्हेन आई एम माय जॉब and I deliver I try to do it in the best possible way despite all the low market resource constraints I think you should make yourself a resource and not look into the things के principal साहब ने use करेंगे ये करेंगे do it yourself and you can do it yourself if you have a will you have all the everything at your hand just you may not be lead but you are still stepping ये जरूरी नहीं है कि आप छलांगे मारें but आहिस्ता 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 just creep in and you will find your pace and if you do your best you will be the best thank you so much thank you for everything